Hello, class 9th. Today, this is the 7th part of our history chapter 2, Russian Revolution. We have discussed in our previous session that the formation of USSR was the most important incident of 1922. Please keep in mind it is important from examination point of view also कि USSR कब फॉर्म हुआ था तो 1922 में. सो कुछ इस तरह से दिखता था. ओके, बट व्हेन USSR फॉर्म्ड, how Russian Empire looked like, I'm telling you. See, this was the situation of USSR. See, Russia used to look like in this way. Okay, so big it was. Many countries were a part of Russia. Okay, but the process of USSR breakup, when it break up, actually this is not given in this chapter, but for your knowledge I am letting you know that when USSR broke up and how it looked like after its disintegration. This is the situation of Russia, how it used to look like after breakup. It broke up in 1988. The process of disintegration started in 1988 and finally 1991 में जो USSR था, जो United States of Soviet Rus, but finally it broke up in 1991 and all these countries like Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus. So all these countries got separated from Russia. पहले तो ये सारी जो कंट्रीज़ थी ये रशिया में ही मिली हुई थी, बट बाद में 1988 में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ USSR के डिसइंटीग्रेशन का, इट एंडेड इन 1991 विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. ओके, and now today let us begin our today's topic, that making a socialist society. Now here one question you might have, that what is the meaning of Soviet and what was its purpose? So basically Soviet means a union, a committee, okay, a council, a committee, okay, which is dedicated to make the socialist society. उनको सोसाइटी बनानी थी, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं बनानी थी. वो क्या बनानी थी, जैसे हमारी इंडिया में अब कौन सी सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक है. ओके, बट दे वर इंटेंडेड टू मेकिंग socialist society. So during the civil war, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. बोल्शेविक्स की तो प्रॉमिसेस ही यही थे कि वो जैसे ही गवर्नमेंट बनाएंगे और वो बैंक्स नेशनलाइज्ड करेंगे. ये लेनिन की जो अप्रैल थीसिस का एक पार्ट था. ओके, देन दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड हैड बीन सोशलाइज्ड. जो लैंड सोशलाइज्ड हो गई थी मीन्स जो सपोज दिस इज द small pieces of land, 1 2 3 4 5 6. Okay, all 6 farmers are doing agriculture on their own land. But now in socialist society, all the lands of all the farmers will be mixed together, and they all 6 farmers will jointly do agriculture on this combined land. Okay, so this was the basic theme, and they will distribute all the earnings between them. Okay, so permitted peasants to cultivate the land had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. Confiscated means जो land थी उसको उन्होंने जब्त कर लिया, means अपने अंडर में. So to demonstrate what collective work could be, तो उनको ये दिखाने के लिए लोगों को कि कलेक्टिव वर्क कैसा हो सकता है. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आ गई, मीन्स 5 ईयर प्लान आ गए यहाँ पे. ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड. ऑन दिस बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान्स. The government fixed all prices to promote industrial growth during first 2 plans. अब यहाँ पे फर्स्ट 2 प्लान मीन्स जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, सेकंड जो 5 ईयर प्लान बना, तो फर्स्ट 2 प्लान्स में गवर्नमेंट ने किसको प्रमोट किया, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. ओके, देन
central and what was the year? 1927 to 1932 and 1933 to 1938. And actually in our year, our country also, the 5-year plan we also adopt. Okay, centralized planning led to economic growth. Industrial production increased between 1929 and 33. मीन्स गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया तो उसने तो वो काम किया, मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ by 100% in the case of oil, coal and steel. New factory cities came into being. पहले जो केवल 2 ही फैक्ट्री सिटीज़ थी कि जो पेट्रोग्राद था उसका जो ओल्ड नेम था सेंट पीटर्सबर्ग एंड जो मॉस्को, तो इन 2 सिटीज़ में ही फैक्ट्रीज हुआ करती थी. बट अब न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. ओके, पुअर कंडीशंस तो यहाँ पर भी थी. In the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. Means workers की जो situation थी इतनी बुरी थी, इतनी hard life उनको मिल रही थी कि 550 times उन्होंने वर्क को स्टॉप किया, मीन्स स्ट्राइक की एक साल में. In living quarters in the winter time at 40 degree below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to toilet. अब सोचो टॉयलेट जाना है किसी को तो वो 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री जो टेम्परेचर में वो 4th फ्लोर से उठता और एक पूरी स्ट्रीट वो क्रॉस करके और वो टॉयलेट जाता था. इससे ज़्यादा क्या हार्ड लाइफ होगी. ओके, इमेजिन करो. An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. But इसके साथ साथ कुछ स्कूलिंग सिस्टम में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में इंटर करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट्स किए गए. Creches were established in factories for the children of women worker. Cheap public health care was provided. Okay, means because everyone cannot afford एक कॉस्टली पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. ठीक है, हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकता. सो चीप पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वर प्रोवाइडेड. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स. ठीक है, जहाँ पे कि वर्कर्स के लिए थोड़ी सी कंडीशंस अच्छी थी. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. बट अब इसमें भी क्या था, जो इफ़ेक्ट थे वो सारे अनइवन थे. कहीं पे इफ़ेक्ट्स अच्छे थे बट कहीं पे बहुत हार्श सिचुएशन में जो वर्कर्स थे वो रहने के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब मजबूर थे. एंड इसका रीज़न था कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. अब स्टेलिन का पीरियड आया है. ठीक है, द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. जो फर्स्ट टू जो 5 years प्लान थे तो इसमें जो डिज़ास्टर कलेक्टिवाइजेशन हुआ तो सही बट वो एक डिज़ास्टर के रूप में आया. By 1927-28, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices. Government ने बहुत कम prices वो fix कर दी, but peasants जो थे उन्होंने उस price पे जो grain sell करने के लिए मना कर दिया, refuse कर दिया. Stalin, who headed the party after the death of Lenin, okay, बोल्शेविक्स का लीडर कौन था बाद में, स्टेलिन. सो इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स. ओके, उसने थोड़ा सा कुछ और अच्छा इम्प्रूवमेंट किया. ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्रीसाइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस एंड स्पेक्यूलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड. उस बिकॉज उसने पता लगाया कि जो पीजेंट्स, जो रिच पीजेंट्स थे और ट्रेडर्स थे वो होर्डिंग कर रहे हैं एंड मीन्स वो जो ग्रेन्स है वो कलेक्ट करके अपने स्टोर में, अपने वेयर हाउसेस में वो रखे हुए हैं. और उससे क्या है, आर्टिफिशियल जो मार्केट में आर्टिफिशियल उसकी जो कमी है वो बना रखी है. इससे क्या है, प्राइसेस बढ़ रही है
Okay, or means in the hope of higher prices and speculation had to be stopped and supplies confiscated. तो उसने जो सप्लाई थी फूड ग्रेन की उसको कन्फिस्केट कर लिया, मीन्स उसने अपने अंडर में ले लिया. स्पेकुलेशन मीन्स जो सट्टा बोलते हैं, तो ये इस तरह से जो सट्टा है कि प्राइसेस बढ़ेंगी तब मैं माल बेचूंगा, तो ऐसा स्पेकुलेशन को स्टॉप किया जाना चाहिए. In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, means the name for well-to-do peasants. As shortages continued, the decision was taken to collective farms. It was argued that grain shortages were partly due to small size of holdings. Okay, ये जो fields हैं ये बहुत ज़्यादा small size के हैं, इसलिए उस पर इनफ ग्रेन हो नहीं पाता है और ग्रेन की शॉर्टेज है. ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कलेक्टिव फार्मिंग की. दैट दे मर्ज्ड ऑल द pieces of lands together and all the farmers would work in the big piece of land, and the income in the grains they will distribute among all. Okay, so this was the concept. Kulak means this name for well-to-do peasant. So it is important in one marker. Please learn. It was argued that grain shortages were partly due to small size of holdings. After 1917, land had been given over to peasants. These small size peasants farms could not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks. जो वेल टू डू पीजेंट थे उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी था, उनको हटाना ज़रूरी था. टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स. ठीक है, वो जो लार्ज फार्म्स जो बने सबकी जो लैंड मर्ज करके, वो किसके कंट्रोल में आ गए, स्टेट के. वॉट फॉलोड वॉज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स. कलेक्टिव फार्म्स को क्या बोलते थे, कोलखोज. ये भी 1 मार्कर है, इंपॉर्टेंट है. सो कलेक्टिव फार्म्स मीन्स कोलखोज. द बल्क ऑफ लैंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स. पीजेंट वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड. Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. And enraged means एंग्री पीजेंट. ओके, सो उन्होंने अथॉरिटीज़ और उनके जो लाइफ स्टॉक था, मीन्स जो कैटल जो थे, ओके, जो उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया. बिटवीन 1929 एंड 31 द नंबर ऑफ कैटल फेल 1/3. जो नंबर ऑफ कैटल थे लाइक काउज एंड बफेलोज, और वो क्या, वो बहुत रिड्यूस हो गए. ओके, दोज हु रिड्यूस क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने जो एंग्री जो पीजेंट थे उन्होंने उनको मार डाला था. दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड. ठीक है, जिन्होंने इसको रेजिस्ट किया मीन्स इसको विरोध किया, उनको पनिश किया गया, वो भी बहुत सीवियरली. मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्ड. और बहुत को जेल में डाल दिया गया और बहुत को बाहर निकाल दिया गया. एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. Okay, जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किया, उसको विरोध किया, तो पीजन ने अपना आर्ग्यू दिया दैट दे वर नॉट अगेंस्ट, ओके, सोशलिज्म. वो रिच नहीं थे और वो सोशलिज्म के अगेंस्ट भी नहीं थे. दे मियरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स. बट कलेक्टिव फार्म्स में वर्क करना भी इतना ईजी नहीं है. ओके, आज जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें भी लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. दे हैव सो मेनी डिस्प्यूट अमंग देम. सो कलेक्टिव फार्म्स इट वाज नॉट वेरी इजी टू वर्क विद ऑल द peasants. So what they argued that they did not want to work in collective farms for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. हालांकि स्टालिन ने उनको इंडिपेंडेंट फार्मिंग कुछ लोगों को स्टार्ट कर दी थी, परमिशन दे दी थी,
पर उनको बहुत ही उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं थी, मीन्स दे वर नॉट हेल्प बाय गवर्नमेंट, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से फिर कोई हेल्प नहीं मिलती थी. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली. कलेक्टिवाइजेशन की जो स्टेलिन और जो उनकी थ्योरी थी उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ. जो ग्रेन प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, ठीक है. इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1932-33 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. Okay, means 4 million people died in this famine of the Soviet history. It was the most bad famine of the world in the world history. Okay, कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद इतना जो बुरी तरह से वहाँ पे ग्रेन की सिचुएशन थी. मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज्ड the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. अब स्टेलिन और उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनको कैसे देखा दैट वो लोग क्या कर रहे हैं कि सोशलिज्म के अगेंस्ट वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. ओके, accusations were made throughout the country and by 39 over 2 million were in prisons or labor camps. ठीक है, जिन्होंने भी उनको अपोज किया उनको क्या किया, प्रिजन में डाल दिया या लेबर कैंप्स में डाल दिया जहाँ पे वो एज ए लेबर वो काम करेंगे फॉर गवर्नमेंट एंड दे विल नॉट बी पेड. मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम. अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर torture and were executed. Okay, उनको फांसी भी लगा दी गई. Several among them were talented professionals. ठीक है, वो प्रोफेशनल्स थे, टैलेंटेड थे, बट कोई इससे बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ, उन्होंने उनको बैडली क्रश्ड कर दिया. अब बात करते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर. अब जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसका पूरे वर्ल्ड पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट हुआ. ओके, और जो यूएसएसआर फॉर्म हुआ उसका किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज ये एक शॉर्ट नोट या फिर एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आ जाता है. राइट द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. यूरोप में भी जो था बोल्शेविक्स और उनकी पार्टी ने जो पावर को टेक ओवर किया था उन्होंने अप्रूव नहीं किया पूरी तरह से. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. बट वर्कर्स स्टेट, एक तो स्टेट था जो किंग्स, ओके, जो जिस पे कि किंग रूल करता था, एक तो किंग का स्टेट था, और अब उस स्टेट पे किसने रूल किया, वर्कर्स. ठीक है, वर्कर्स स्टेट वो बन गया, तो उससे जो पीपल इमेजिनेशन उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अब हाई हो गई. ओके, इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई दूसरी कंट्रीज़ में. द बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. Many non-Russians formed outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East and Bolsheviks founded Comintern. ओके, बोल्शेविक्स ने एक कमिंटर्न फाउंड किया. कमिंटर्न क्या था, एक एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़. ठीक है, जो लोग बोल्शेविक्स को आउटसाइड रशिया जो सपोर्ट करते थे तो उन सब की एक कमिंटर्न बनी. ठीक है, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. बाय द टाइम of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature.
जो एक पहचान दी गई, उसको एक ग्लोबल फेस मिला, एक स्टेचर मिला, एक हैसियत मिली यूएसएसआर को आउटसाइड द वर्ल्ड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर एक बहुत जो सोशलिज़म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था और उसको एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल फेस मिल चुका था, मीन्स पहचान मिल चुकी थी, आइडेंटिटी मिल चुकी थी। Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. ठीक है, सब लोगों ने ये रिकग्नाइज किया कि सोवियत यूनियन थी तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वहाँ पे ठीक है, ऑल वॉज नॉट वेल. A backward country had become a great power. ठीक है, its industries and agriculture had developed and poor were being fed. जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर थी वहाँ पे डेवलप हुई और पुअर जो थे वो अब उनको खाना मिलता था. बट इट हैड denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. ठीक है, जो पुअर को जो खाना मिल रहा था और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर डेवलप हुए थे रशिया में, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, दैट it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. जो policies repressive means जैसे लोगों को मार दिया, जेल में डाल दिया, कंट्री से निकाल दिया, तो ये सारी repressive policies थी और जो उनको फ्रीडम तो दी नहीं गई सिटीजन्स को. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. अभी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन यूएसएसआर की कैसे थी, एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में थी, बट वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुई. ओके, एंड फिर भी कुछ जो कंट्रीज़ थे उनके जो सोशलिस्ट आइडियल्स जो थे वो कुछ अभी भी उनमें रिस्पेक्ट बनी हुई थी. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. अब सोशलिज्म का हर एक कंट्री ने अपने अपने तरीके से उसको गेस किया, उसको थॉट में लाया. रीथॉट मीन्स उन्होंने अपने तरीके से इसको परसीव किया. ओके, so here this chapter ends. Hope you have got this chapter. Still, if you have any doubt, you can tell me through your comments in comment box. Till then, goodbye, take care.